Hello everyone, welcome back to this Kafka series. And in this series, today we will be talking about how we can see the details of a particular topic that we have created earlier. And after reading the details of the topic, we'll see how we can produce messages, and parallelly we'll also see how we can consume messages. ठीक है, तो अभी से पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं काफका के ऊपर, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा सारा चीज़ें। एंड आज जो देखने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आज प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के रोल के बारे में देखेंगे कि हाउ दे आर एक्चुअली एबल टू प्रोड्यूस मैसेजेस एंड व्हाट स्क्रिप्ट्स डू वी यूज़। कौन से ऐसे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास जो काफका हमें दिए हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ओपन योर माइंड फर्स्ट, ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई हैव ओपन माई वर्चुअल बॉक्स मैनेजर एंड फ्रॉम हेयर आई विल स्टार्ट माई उबंटू सिस्टम, ठीक है। एंड काफका से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लगे, डू कमेंट इट आउट। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट दिस system, and the virtual machine execution ran into a non-fatal problem, no issues. We just have to wait and we'll ignore this. Okay, so we are good to go. And previous जो स्टेट थी हमारी, मतलब पहले जो हमने काम किया था वो अभी तक सेव्ड है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेट सेव कर रखे थे। सो स्टेट सेव करने का क्या मतलब है कि हमारे पास ज़ूकीपर रनिंग फेज़ में था, हमारे पास सर्वर हमारे रनिंग फेज़ में थी। तो दो चीज़ें चलना बहुत आवश्यक है, ठीक है। ज़ूकीपर के बिना हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज़ हमारे रनिंग फेज़ में अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CLS नहीं होता यहाँ पे, Ctrl+C करो, क्लियर करो, just wait, what's the problem? Wait for a while, I think there is a network issue. Okay, okay, we'll do one thing, let's cross this out, let's close this machine, save state and close this machine. We'll restart it again. Okay, and after Kafka we'll again continue our series of microservice. I know I'm not uploading any videos on that thing, but soon I'll be uploading very fast, ठीक है। तो let's start it again. Just keep patience, because the playlist that I'm making is extremely important for all of the students, whether you are in first year, second year, third year, fourth year, or graduated. Okay, I'm adding or graduated because some of the concepts are really amazing and you should know. Now our system is currently working fine. Okay, so now we can start working with it. But what happened is, let me reinstall this updated version. Okay, and it will just take a few minutes. So I'm really sorry to make you wait for a longer time, बट अभी हमें क्या है ना, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करनी पड़ेंगी। ज़ूकीपर और सर्वर को स्टार्ट करेंगे एंड देयर आफ्टर विल सी अदर थिंग्स एज वेल। एंड टिल देन लेट्स सी कि हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं। आई प्रिपेयर्ड अ नोट। सो टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ फर्स्ट रीडिंग टॉपिक डिटेल। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक क्रिएट की थी उसका हम डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड इज़ हाउ वी कैन प्रोड्यूस मैसेजेस, okay, with the help of
there is a script for producing message, we'll see later. But second process is producing message. Third is consuming message. Of course, once we produce some message, we have to consume it somewhere. Okay, so that's the main part. After seeing these producers and consumers role, we'll see how we can produce messages by different multiple producers and along with multiple consumers, how multiple consumers can consume messages from specific partitions, specific topics, everything, whatever you can think, we can do, like consuming messages from different producers, topics, partitions, offsets. We'll see each and everything. Okay, thereafter what changes occurred in Kafka logs, we'll see that also. Okay, so ये सारी steps हमें देखनी है आज. Let's get started. ठीक है? Okay, I think there is an network issue. Let me reconnect with my personal hotspot. Really sorry for this. Really sorry. Now it should work fine. Now let's start our terminal. Open terminal. We'll start Zookeeper first. ठीक है, तो डेस्कटॉप में हम जाएंगे CD downloads. We are into downloads. Do ls list. Okay, so we have this folder Kafka. What I'll do, I'll copy. Okay, copy हमने कर लिया and हम क्या करेंगे, CD just paste it here. Okay, so we are inside this folder Kafka. We'll do ls bin करते ही हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, बट अभी हमें Zookeeper स्टार्ट करना है, तो विल चूज Zookeeper server start.sh. Okay, let me clear this out again. Let me maximize it, and what we'll do is bin / Zookeeper server start.sh. And now in order to run Zookeeper, we don't have to rely on only script. We also have to include its configuration. So configuration attach करने के लिए we'll do config / Zookeeper dot properties. अब बोलोगे भैया यहाँ Zookeeper डॉट ये config कहाँ से आया मेरे पास, तो आप ls config करोगे तो आपको वहाँ पे Zookeeper की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर and your Zookeeper will be started soon. And what is the port number of Zookeeper जहाँ पे वो रन करता है, this 2181. एंड किस पोर्ट से ये रिसीव करता है सारे रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट, किसी से भी भैया आपने बोला था किसी भी आईपी से वो क्या करेगा ना, रिक्वेस्ट को, इनकमिंग रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है. एंड इट्स रनिंग ऑन 2181 पोर्ट. ठीक है, एंड अगेन विल स्टार्ट, minimize it, again we'll start another terminal. Here we'll go to CD downloads. Okay, CD, I think let's paste this out. Okay, and now it's the time to start a server. broker start करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, bin / Kafka server start .sh, give it a space, and then config / server dot properties. ठीक है, press enter and we'll see a bunch of things. Please ignore as of now because we have already studied everything. Okay, इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये सारी डिटेल्स हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर्स, पार्टीशन, सब कुछ थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स. ओके, नाउ वी आर डन. अब हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक टॉपिक क्रिएट किया था. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. हमने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक क्रिएट किया था. अब इस
पूरे लेक्चर में हमने क्या बोला कि हम ये देखेंगे, हमने ये बोला कि सबसे पहले हम उस टॉपिक जो हमने क्रिएट किया था उसका हम डिटेल पढ़ेंगे भैया। तो चलो हम डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल पढ़ने के लिए अगेन ओपन इन टर्मिनल। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, आई नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्या करेंगे, टॉपिक्स हमने क्रिएट किए थे। अब मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक्स थे, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स थे। सबसे पहले तो इसमें आ जाओ आप, CD डाउनलोड्स CD एंड पेस्ट, ठीक है, काफका वाले फोल्डर के अंदर है हम। अब हम करेंगे CD/TMP। अब एक बात बताओ, काफका लॉग्स वाला जो फोल्डर मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, एक लॉग्स नाम से फोल्डर था, एक काफका लॉग्स के नाम से फोल्डर था। तो सिस्टम लॉग्स कौन से फोल्डर में स्टोर होता था? काफका लॉग्स, सही बता रहे हो आप लोग। काफका लॉग्स एक ऐसा फोल्डर था जिसके अंदर सिस्टम लॉग्स सारे जाके स्टोर होते थे। तो हम उसी को अभी थोड़ा सा देख रहे हैं। तो TMP के अंदर जाओगे आप, काफका लॉग्स करोगे एंड आप उसमें आ गए। अब यहाँ पे LS करो। LS करते ही आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब एक बात बताओ यार, भैया आपने बोला था कि आपने टॉपिक बनाया, लेकिन काफका लॉग्स के अंदर टॉप पार्टीशंस तो मुझे दिख ही नहीं रहे। पिछले लेक्चर में मुझे स्टेट्स नाम से एक पार्टीशन दिखा था, स्टेट्स 0 क्यों दिखा था? अब यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट, आप लोग याद रखना, जो मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि अभी ये उड़ जाएगा, बट अगर ये चीज़ आई है तो हम डिस्कस करेंगे। लॉग रिटेंशन पीरियड, ठीक है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। देखो, रिटेंशन पीरियड, ठीक है। अब काफका जो स्टोर करके रखता है ना, काफका लॉग्स के अंदर जो भी लॉग्स हैं, उसका एक रिटेंशन पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम तक वो अपने अंदर रख सकता है उस चीज़ को। तो ये जो रिटेंशन पीरियड है ना, वो 7 डेज का होता है। रिटेंशन पीरियड कितना दिन का होता है? 7 डेज। और दूसरी भाषा में अगर हम इसको बोले तो कितने आवर्स हो गए? अराउंड 170 आवर्स या 168 आवर्स, 168 आवर्स, ठीक है। तो लॉग रिटेंशन पीरियड काफका का ये होता है, याद रखना आप लोग। इसलिए हमने जो टॉपिक बनाया था पिछले लेक्चर में वो उड़ चुका है भैया, आपके पास है ही नहीं वो। समझ आई चीज़ें? तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हम वापस से टॉपिक क्रिएट करेंगे एंड वापस से सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब ये पार्ट टॉपिक क्रिएट करना नहीं था मेरे इस लेक्चर का पार्ट, बट स्टिल हम क्रिएट करेंगे, फिर उसका डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल डू क्लियर, ठीक है, हमारा सब चीज़ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्रिएट करना देखा था, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, bin/काफका। अब टॉपिक्स का स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ls bin करके जाओगे ना, तो टॉपिक्स का होता है, रुको देखो, ls bin करो। Okay, we are into this folder. Just cross this out. Open in terminal. CD downloads. CD paste. ओके, आप ls bin करो। ls bin करते ही हमें क्या दिख रहा है? आपको कहीं पे टॉपिक्स नाम से कुछ दिख रहा है क्या? हेयर काफका topics.sh दिख रहा है। तो यही स्क्रिप्ट यूज़ करके हम टॉपिक को क्रिएट करेंगे। तो आई विल डू क्लियर अगेन एंड हम क्या करेंगे, bin/kafka-topics.sh, ठीक है। टॉपिक नहीं है, टॉपिक्स है, ठीक है। और हमें याद है कि भैया आपने बोला था कि कुछ ऑप्शंस हमें लगाने पड़ते हैं, CRUD ऑप्शंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट ऑप्शंस अटैच करेंगे और डैश बूटस्ट्रैप सर्वर। अब बूटस्ट्रैप सर्वर क्या होता है?
भैया क्या मैं इस बूटस्ट्रैप सर्वर की जगह पे ज़ू कीपर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? अब बताओ भैया मुझे इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ज़ू कीपर हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रीवियस वर्जन ऑफ काफका से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़ू कीपर पहले के ज़माने में ना, मतलब जब ज़ू कीपर के ओल्डर वर्जन से हम डील करते थे तो ज़ू कीपर का इस्तेमाल किया जाता था। और ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट को कि मेटा डेटा ऑफ काफका का जितना भी मेटा डेटा होता था वो ज़ू कीपर भाई साहब स्टोर करते थे। लेकिन अभी जो कंडीशन है, ज़ू कीपर भाई साहब नहीं करते, अब हमारे करते हैं ब्रोकर भाई साहब। अब ब्रोकर ये बोलता है कि ज़ू कीपर पे डिपेंडेंट मुझे होना ही नहीं है, ठीक है। ज़ू कीपर पे डिपेंडेंट मुझे होना ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, सारा मेटा डेटा खुद के अंदर में स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप सर्वर को यूज़। समझ आई चीज़ें? अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे आपको तो वापस से एक बार रिपीट मोड में सुनो, फिर अगर समझ नहीं आए तो आप इसके डॉक्स पे जाके देखो, ठीक है। बूटस्ट्रैप सर्वर हमने इंक्लूड किया। अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट :9092, ठीक है, और एक टॉपिक क्रिएट करेंगे। टॉपिक, अब यहाँ टॉपिक आएगा और टॉपिक का नाम हम स्टेट्स दे सकते हैं, वापस से स्टेट्स, ठीक है। एंटर हमने प्रेस किया एंड देखते हैं ये क्या करता है। एक्सेप्शन इन थ्रेड, ओके, ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सेप्शन क्यों दे रहा है भैया हमें? ओके बूटस्ट्रैप, ओके, स्पेलिंग गलत है यार, रुक जाओ यार, क्या, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। वेट, बूटस्ट्रैप नहीं है, इट्स बूटस्ट्रैप। होप फॉर द बेस्ट कि टॉपिक क्रिएट हो जाए। हाँ, अगर कुछ नहीं आया तो बिल्कुल हमारा टॉपिक क्रिएट हो चुका है। अब इन ऑर्डर टू वेरीफाई आवर टॉपिक, अब यहाँ से आप लोग कमांड सीखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब अच्छे तरीके से हम देखेंगे सारी चीज़ों को। हमने टॉपिक क्रिएट किया, हमें कुछ नहीं मालूम। अब टॉपिक्स को देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, cd/tmp/kafka logs, जो भी हो काफका लॉग्स में आप देख सकते हो। ls करो भाई साहब, ls किया भैया हमने। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टेट्स ज़ीरो का, ये क्या है, ये एक पार्टीशन है, ठीक है, जिसका ऑफसेट नंबर 0 है। क्या बोल रहा हूँ, लिखो, ये स्टेट्स 0 हमारा एक पार्टीशन है और पार्टीशन स्टेट को ऑफसेट दिया गया है 0। अगर आपने थ्योरी देखा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑफसेट। याद आया, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब मैं वापस कट करूँगा अपने टर्मिनल, क्योंकि जल्दी करना है मुझे। तो वापस मैं जाऊँगा cd डाउनलोड्स, cd राइट क्लिक पेस्ट, ओके, हम आ गए काफका वाले फोल्डर में। अब हम क्या करेंगे, हाँ, एक चीज़ जो हमने अभी किया ना स्टेट 0, आप उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर जा सकते हो आप, कैट कमांड से उसके सारी चीज़ों को देख सकते हो। लॉग फाइल होगा, इंडेक्स फाइल होगा, ठीक है, जो कि एम्प्टी फाइल्स हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई मैसेज भेजा ही नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, लिस्ट करना है कि जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमारे पास हैं पूरे काफका क्लस्टर के अराउंड, तो उस चीज़ को हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बिन, आप लोग कमांड्स लिखना, बिन काफका -topics.sh, ठीक है। अब करेंगे भैया हम लोग लिस्ट, तो डबल डैश लगा के लिस्ट, और हम लगा रहे हैं ज़ू कीपर। अब भैया यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप सर्वर यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत, शायद दिक्कत आए, शायद दिक्कत ना आए, तो आप लोग करके देख लेना, ठीक है। बट सेम बात ही है।
फिर करो लोकल होस्ट कॉलन 2181। अब 2181 हम क्यों ऐड कर रहे हैं भैया? क्योंकि ज़ूकीपर भाई साहब वहीं चल रहे हैं। ठीक है, हम करेंगे एंटर करने पे आपको क्या पता चलेगा कि कितने टॉपिक्स हमारे पास पहले से हैं, उसको लिस्ट डाउन कर दो। देखो हमारे पास बस एक टॉपिक है जिनका नाम है स्टेट्स, तो वो हमें इसने शो कर दिया कि भैया आपके पास सिर्फ एक है जिसका नाम है स्टेट्स। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि भैया उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिखाओ। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के लिए हम करेंगे बेन काफका topics.sh describe zookeeper, thereafter local host 2181 क्योंकि ज़ूकीपर का वही है, टॉपिक। अब टॉपिक का नाम दे दो, किस टॉपिक को आपको डिस्क्राइब करना है? भैया मुझे स्टेट्स को डिस्क्राइब करना है। स्टेट्स के नाम से जो हमने टॉपिक क्रिएट किए थे उसको डिस्क्राइब करो। तो एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ तड़कता भड़कता आएगा, देखो क्या है। अब यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है? जब मैंने ये कमांड रन किया तो स्टेट्स जो टॉपिक का नाम था हमारे पास, उसके सारी चीज़ आ गई कि रेप्लिकेशन फैक्टर क्या है, पार्टीशन काउंट क्या है, कॉन्फिग्स क्या है, रेप्लिकाज क्या है, ISR क्या है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद से देखोगे, जैसे इन सिंक रेप्लिकाज। ठीक है, इन सिंक रेप्लिकाज। पार्टीशन काउंट आपको पता है कि कितने पार्टीशंस बनेंगे? अभी एक ही पार्टीशन बना है। ठीक है, अभी एक ही पार्टीशन बना है जिसको 0 असाइंड है। ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है। रेप्लिकेशन फैक्टर का मतलब भैया, रेप्लिकेशन फैक्टर का मतलब कि कितने कॉपीज़ बनेंगे एक मैसेज के, कितने टॉपिक्स बनेंगे अलग, और कितने ब्रोकर्स में वो जाके स्टोर होगा। अभी हमारे पास एक ही ब्रोकर है, अभी हमारे पास एक ही सर्वर है। कंफ्यूज मत होना, ब्रोकर को ही हम सर्वर बोल सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक ही अभी मैसेज एक जगह पे स्टोर है, इसलिए रेप्लिकेशन फैक्टर 1 है। अगर 2 दें तो 2 कॉपीज़ बनेंगी उस मैसेज की। ठीक है, अब रेप्लिकास कितने हैं उसके? 0। रेप्लिका का क्या मतलब है? रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब कितने कॉपीज़ बन रहे हैं। रेप्लिका का ये मतलब है कि कितने ब्रोकर्स में उसका रेप्लिका एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरा ब्रोकर ही नहीं है भैया, हमारे पास तो एक ही ब्रोकर है, एक ही सर्वर है। ठीक है, तो एक ही जगह पे हो रहा है, तो रेप्लिका है ही नहीं उसका। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें दिख गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? देखो रेप्लिकेशन फैक्टर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है ना, वो 1 ही होता है। अगर आपको ये देखना है तो आप क्या करोगे? इसको हमने VS कोड इंस्टॉल किया था, याद है क्या आपको? हमने किया था VS कोड इंस्टॉल। तो VS कोड जब हमने इंस्टॉल किया तो डाउनलोड्स में जाओ भैया, आप तो बताओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पर राइट क्लिक करो, ओपन इन टर्मिनल करो एंड करोगे कोड डॉट। ठीक है, अब हमारा VS कोड खुलेगा एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसको खुलने देते हैं। तो इसने VS कोड खोल दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम देखेंगे एक चीज़। काफका फोल्डर के अंदर आओ एंड ऑलरेडी हम किसके अंदर है? सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। कॉन्फ़िग फोल्डर में सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। ओके, नंबर पार्टीशंस 1 एग्जिस्टिंग, डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लॉग पार्टीशंस पर टॉपिक, मतलब एक टॉपिक में कितने पार्टीशंस डिफ़ॉल्ट रहते हैं? एक रहते हैं। यहाँ पे आया इन सिंक रेप्लिकास मिनिमम। ठीक है, लॉग रिटेंशन आवर 168। देखो मतलब कहीं ना आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 168 घंटे का होता है लॉग रिटेंशन। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द मिनिमम एज फॉर लॉग फाइल टू बी एलिजिबल फॉर डिलीशन ड्यू टू एज। अब इसकी एक एज डिफाइंड है। ठीक है, देख रहे हो? सारी चीज़ें आप देख लेना, जो भी चेंजेस हो रही हैं सारी। मैं इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि हैवी हो जाएगा नहीं तो। चलो
इसको करो क्लोज, इसको भी करो क्लोज एंड यहाँ से विल स्टार्ट। यहाँ तक हमने कर लिया भैया, यहाँ तक जितने भी आपने कमांड बताए उसको हमने कॉपी कर लिया, उसको हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। बट मैसेज सेंड करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि इस लेक्चर तक हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी तक किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस एंड टू लर्न इन डेप्थ, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप लोग, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंटेबल है वो चीज़।